Good morning, class. So let us start from where we stopped in our previous class, that is greenhouse effect. Okay. You know that the sun's rays warm the earth's surface. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it, and a part is reflected back into the space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere, and the trapped radiations further warm the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of radiations by the Earth's atmosphere is similar. This is why it is called the greenhouse effect. Without this process, life would not have been possible on the Earth. But now it threatens the life. Carbon dioxide is one of the gases responsible for this effect. You know that carbon dioxide is one of the component of the air. You have also studied the role of carbon dioxide in the plants. But if there is excess of carbon dioxide in the air, it acts as a pollutant. And can you help the Paheli find out the answers to her questions? On the other hand, carbon dioxide is continuously being released because of the human activities. On the other hand, area under forest is decreasing. Plants utilize carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of carbon dioxide in the air. Deforestation leads to an increase in the amount of carbon dioxide in the air. Because the number of trees which consume carbon dioxide is reduced, human activities thus contribute to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide traps the heat and does not allow it to escape into the space. As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing, and this is called global warming. Other gases like methane, nitrous oxide, and water vapor also contribute towards this effect. Like carbon dioxide, they are also called greenhouse gases. Global warming has become a major concern for the governments worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. Bujo is surprised to hear that an increase in the earth temperature by even as little as 0.5 degrees centigrade can have such a serious effect. Paheli tells him that she has read in the newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melting because of this global वार्मिंग. अभी देखो जो भी अर्थ के ऊपर सनलाइट आती है ना, जो भी आती है अमाउंट उसमें से कुछ एक पार्ट अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी का वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है. ओके, तो जो अर्थ में आ गया वो एब्जॉर्ब हो गया, बाकी का रिफ्लेक्ट हो गया. अभी जहाँ पर रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जो है वो ग्रीन हाउस जिसको हम बोलते हैं कि गैस ओजोन लेयर है, वो हीट को ट्रैप कर लेती है, राइट. स्पेस में ऊपर जाने नहीं देती है ना, रह जाती है इधर ही, राइट. अब दूसरा क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी, ये पहले की बात है जब नेचर एकदम प्योर था, तो ये हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बराबर था. अब क्या हो गया है कि ओजोन लेयर जो थी, राइट, वो उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आती थी, राइट, फिल्टर होके आती थी सन रेज जो आती थी, राइट, और नीचे का एटमॉस्फेयर हमारे रहने लायक हो गया था. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो हैं, एक तो है पोल्यूशन, है ना,
गाड़ियाँ चलाते हैं, फैक्ट्री में से धुआं निकलता है, और मोस्टली ये धुआं जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अभी प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे लिए खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, राइट। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता था पहले, और मोस्टली लोगों के पास खेतीबाड़ी जो होती थी, आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट्स हुआ करते थे, तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते थे एटमॉस्फेयर में से, राइट, और शुद्ध हवा मिलती थी हमें। तो पहले ना तो व्हीकल्स थे इतने सारे, ना इतनी सारी फैक्ट्रियाँ थी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में था, राइट, हमारे चूल्हे जलाने से, नहीं वो करने से, राइट, तो वो प्लांट्स ले ले रहे थे, राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जमा नहीं होता था। अभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से क्या हुआ कि दिन ब दिन रोड के ऊपर ट्रैफिक बढ़ती ही जा रही है, आपको पता ही है ना। वो सारे धुएं जो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फैक्ट्रियों में से धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में सनलाइट को अपने पास कैद कर लेता है ना, रिफ्लेक्ट वापस एस्केप होने नहीं देता है। तो ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, राइट, जिसकी वजह से हिमालयन के ऊपर जो बर्फ़ की परतें जमी हुई थी, नॉर्थ पोल के ऊपर भी जो बर्फ़ की परतें जमी पड़ी है वो पिघलना शुरू हो जाती है, राइट। तो दिन ब दिन हमारा देखो मैक्सिमम टेम्परेचर पहले अगर आप देखते ना तो 41-40 होता था, अभी एवरी ईयर 0.5% के इंक्रीज होता ही जा रहा है। इस साल अगर हाईएस्ट टेम्परेचर 42 था तो अगले साल वो 42.5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 43 हो जाएगा, फिर 43.5 हो जाएगा। तो टेम्परेचर रेंज जो है वो बढ़ती जाती है, और जितना दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, है ना, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, फैक्ट्रियाँ लगती जा रही हैं, प्लॉट्स पड़ते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से लेगा कौन? और तो कोई लेगा नहीं प्लांट्स के अलावा, और प्लांट्स हम काट डाल रहे हैं तो जमा ही पड़ा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। धुएं फैलाने वाले व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बढ़ती जा रही हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना। सो दिस इज़ नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी हम कर क्या सकते हैं, देखो, व्हाट कैन बी डन, what can we do to reduce the air pollution? There are many success stories in our fight against air pollution. For example, a few years ago, Delhi was one of the most polluted cities in the world. एक सर्वे हुआ था, उसमें ये पता चला कि दिल्ली जो है वो दुनिया में सबसे पोल्यूटेड सिटी है। मतलब आप अगर दिल्ली में रहते हो तो सांस लेना आपके लिए बहुत नुकसान करता है, क्योंकि उसमें बहुत पोल्यूशन है। Few years ago, Delhi was one of the most polluted cities in the world. It was being choked by fumes released from automobiles running on diesel and petrol. A decision was taken to switch to fuels like CNG. फिर एक डिसीजन लिया गया कि अभी आप लोग जो है वो पेट्रोल और डीजल नहीं जलाओ, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से व्हीकल्स चलाना शुरू करो, unleaded petrol. The measures have resulted in cleaner air for the society. अब होगा क्या कि सारी की सारी गाड़ियाँ अगर CNG पे चलने लगी तो पेट्रोल डीजल का धुआं होगा ही नहीं, ओके, और वो सिटी जो है वो धीरे 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 क्लीन होती गई। You might know of some other examples from your area regarding reduction of the air pollutions and share this with your friends. अगर आपके ध्यान में भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है या ऐसा कोई आर्टिकल ध्यान में आया है तो दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ओके। The quality of air at various locations is mentioned regularly by the government and other agencies. हवा की क्वालिटी क्या है वो अलग अलग जगह की दिखाई जाती है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, राइट। वी कैन यूज़ दिस डेटा टू जनरेट द अवेयरनेस अबाउट द एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो ये हम शेयर भी कर सकते हैं। देयर इज़ ए नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। अभी हमारे पास ऑप्शन ये है
कि अदर फ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। अभी दुनिया सारी जो है वो पहले तो पेट्रोल डीजल पे चलती थी, अभी सीएनजी पे चलने लगी, अब धीरे 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 सोलार एनर्जी, सोलार सेल पे चलने लगेगी सारी गाड़ियाँ ने वो सब, राइट। दिस कुड बी सोलार एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। Small contributions on other part can make a huge difference in the state of the environment। अगर हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, देखो कलेक्टिवली ये सारी पृथ्वी जो है हम सबकी है, राइट। अगर हम ये बोलते हैं कि मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, कि भाई मैं एक नियम बना लेते हैं, राइट, कि मैं हर संडे को कहीं पर भी जाऊंगा तो साइकिल से जाऊंगा या पैदल जाऊंगा, कोई भी व्हीकल यूज़ नहीं करूंगा। फिर सोचते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, है ना, बाकी सब लोग करें तो हो। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी किसी ना किसी को। अगर सब लोग ऐसे ही सोचने लग गए तो पहल नहीं हो पाएगी, है ना। लेकिन सब लोग स्वैच्छिक ऐसे सोचें कि भाई पृथ्वी को, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है हमें, तो हमें हर संडे को, हफ्ते में कोई भी एक दिन, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई संडे के दिन हम कोई भी व्हीकल यूज़ नहीं करेंगे, है ना, खुद का। तो सभी लोगों की गाड़ियों में से जो धुआं निकलने वाला है वो धुआं रुक जाएगा एक दिन ऐसा, फिर धीरे धीरे महीने में 4 दिन ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो सोचो एटमॉस्फेयर कितना क्लीन होता जाएगा। ये एक सिंपल सा तरीका है अगर हम लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो। दूसरा है कि वी कैन प्लांट द ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। दूसरा है कि हम प्लांट्स लगाना शुरू करें जहाँ पर भी खाली जगह दिखे वहाँ पर, या ऑलरेडी जहाँ पर प्लांट्स उगे पड़े हैं उसका देखभाल करना शुरू कर दें, उसको पानी देना शुरू कर दें, उसमें कुछ खराबी है तो उसको दवाई बवाई डाल के उसको ठीक कर सकते हैं। डू यू नो अबाउट द वन महोत्सव व्हेन लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर। हर जुलाई में लाखों पेड़ उगाए जाते हैं वन महोत्सव के प्रोग्राम के तहत। बुजो एंड पहेली once happened to go to an area where some people were burning the dry leaves. They started coughing because the entire area was full of smoke. Paheli thought it would be a better option to put them in a compost pit rather than burning. What do you think? अभी देखो कोई सूखे पत्ते होते हैं तो लोग जला डालते हैं, तो जलाने से क्या होता है, धुआं होता है, और धुआं नुकसान करता है। इससे अच्छा है कि सूखे हुए पत्तों को हम कंपोस्ट मैन्योर, है ना, खातर बनाने में काम में ले सकते हैं, तो नुकसान भी नहीं होगा और सफाई भी हो जाएगी। दूसरा है वाटर पोल्यूशन। इन क्लास 7th यू लर्नड दैट वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स। वाटर जो है वो कीमती खजाना है हमारा। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर। आप सोचो सुबह उठने के बाद रात को सोने तक आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो जिसमें आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आप वॉशरूम जाते हो, फिर ब्रश करते हो, फिर नहाने जाते हो, फिर खाना बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, कपड़े धोने के लिए ज़रूरत पड़ती है, खाना खाने के बाद बर्तन धोने में ज़रूरत पड़ती है, नहीं। तो ऐसे एक घर की बात करें हम लोग तो सोचो कितने घर हैं, तो कितना रोज़ का पानी यूज़ होता है। We saw that the water is becoming scarce due to increase in the population। दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को पानी तो वही चाहिए, और पानी का स्रोत जो है हमारे पास वो होता है रेन वाटर। जितना रेन वाटर हम बचा सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है, फ़ायदा है, वरना बाकी का पानी तो बह के समुंदर में चला जाएगा और समुंदर का पानी हमारे काम नहीं आएगा, राइट। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। You have also studied how water become dirty after we use it for washing, bathing, etc. This means that we are adding some materials to the water which spoil its quantity, its quality and change its smell and color। फिर पानी एक बार यूज़ हो जाता है हमारा, राइट, तो वो गंदा भी हो जाता है क्योंकि इसके गंदगी हम उसमें ऐड कर दें, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है और उसमें से बदबू भी आने लगती है। Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted। जब भी ये सब चीज़ें harmful, toxic chemical उसमें मिल जाते हैं तो वो पानी को नुकसान polluted कर देते हैं। The substance that pollute the water are called water pollutant। तो जो सब्सटेंस है वो पानी को गंदा कर देते हैं उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स।
अभी हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, एक केस स्टडी है। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स इन इंडिया। गंगा को एकदम पवित्र नदी माना जाता था, अभी भी माना जाता है, क्योंकि उसको शुद्ध माना जाता था, साफ माना जाता। लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से वो इतनी गंदी हो गई है, आज के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उसके ऊपर, फिर भी साफ़ नहीं हो पाई। एक केस स्टडी है। इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। ये सारी पॉपुलेशंस को वो पानी देने का काम करती है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड। बहुत से लोग उसके ऊपर डिपेंड भी हैं। रोज़ाना ज़िंदगी जीने की पानी की जो ज़रूरत है वो इसके ऊपर, गंगा के ऊपर। रिसेंटली ए स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world। तो 10 खतरे में जो नदियां हैं उसमें से गंगा एक है। अभी सोचो, द पोल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। दिन साल दर साल उसके अंदर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। We have reached this stage because the towns and cities through which the rivers flows through the large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies, and many other harmful things directly into the river. In fact, the river is dead at many places where the pollution levels are so high that aquatic life cannot survive। अभी जो लोग उस किनारे पे जो पॉपुलेशन आती है जहाँ से वो बहती है, लोग सोचे समझे बगैर उसमें कचरा फेंकते जाते हैं, राइट। तो एक ऐसा स्टेज आ गया कि कहीं कहीं पर तो पानी के जीव जंतु जो होते हैं ना, वो भी उसमें नहीं रह पाते, मर जाते हैं। इसीलिए तो कुछ एक जगह पर गंगा डेड जैसी हो गई है, क्योंकि उसके अंदर कोई पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं और ना ही कोई जानवर या मछलियाँ कुछ रह सकती है, इतनी जहरीली हो गई है। An ambitious plan to save the river called the Ganga Action Plan was launched in 1985। सोचो 1985 यानी से 35 ईयर्स पहले, 35 ईयर्स पहले वो गंदी थी, उसको साफ करने बचाने के लिए प्रोग्राम चालू किया गया। तो आज वो कितनी गंदी हो गई होगी। It aimed to reduce the pollution levels in the river. However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond the repair। और उसके बाद तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगती गई और दिन ब दिन पोल्यूशन उसमें घुसता गया उसमें, तो वो एक स्टेज के ऊपर आ गई जहाँ पर उसका रिपेयर करना भी अभी हमें बहुत मुश्किल सा पड़ रहा है। Let us take a specific example to understand the situation। The Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh has one of the most polluted stretches of the river। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ पर गंगा का स्ट्रेच है कानपुर में, वो हाईएस्ट पोल्यूटेड है। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी, और यूपी में सबसे पॉपुलेटेड है तो वो है कानपुर। People can be seen bathing, washing clothes and defecating in the river। तो नदी में वो लोग बहुत कचरा डाल रहे हैं। They also throw garbage, flowers, idols of god and goddesses and non-biodegradable polythene bags into the river। और कौन कौन से कचरे हैं? फूल फेंकते हैं, मूर्तियाँ फेंकते हैं, मूर्ति के ऊपर के कपड़े जो होते हैं वो फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं और फेंकेंगे तो हमें डर है कि पैर आ जाएगा, न पाप पड़ेगा। नदी में फेंक देंगे तो किसी का पैर नहीं आएगा, है ना। और बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें उसमें फेंक देते हैं, फिर पॉलीथीन बैग्स फेंक देते हैं। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ वेरी स्लो। क्योंकि कानपुर में पानी का फ्लो बड़ा ही स्लो है वहाँ पर, राइट, और वाटर भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज। सोचो 5000 से ज़्यादा तो इंडस्ट्रियाँ हैं। दिस इंक्लूड फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल्स वेस्ट इनटू द रिवर, और ये सारा अपना वेस्ट नदी में ही डालते हैं।
Based on the above information, think of the question, answer the following. What are the factors responsible for the pollution of the river? What steps can be taken to restore the river Ganga to its past glory? And how would the disposal of the garbage affect the living organism in the river? तो सोचो ये सारे क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकते हैं. Many industries discharge harmful chemicals into the rivers and streams. बहुत सी कंपनियां जो है, फैक्ट्रियां जो है, वो अपना वेस्ट नदी में छोड़ देती हैं, राइट, कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर. उसकी वजह से पानी पोल्यूटेड हो जाता है. एग्जाम्पल्स आर ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स. ये सारी फैक्ट्रियाँ एंड केमिकल फैक्ट्रीज. दिस इंडस्ट्रीज कोज केमिकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर. तो हर एक फैक्ट्री में से अलग अलग केमिकल निकलता जाएगा, सोचो, और सब गंदा केमिकल मिक्स होके, वो तो पानी तो एक ही है, सारे केमिकल्स उसी में मिक्स हो रहे जाते हैं. किसी का कुछ केमिकल है, किसी का कुछ है, तो किसी का कुछ, और सब वो आता है पानी में, और पानी कंटामिनेटेड हो जाता है. The chemicals released include the arsenic, lead and fluorides which lead to the toxicity in the plants and animals. और वो केमिकल्स इतने ख़तरनाक होते हैं मिक्स हो जाने के बाद, गंदे हो जाने के बाद, कि वहाँ पर पानी में ना तो कोई पेड़ उग सकता है, ना ही कोई जानवर रह सकता है. There are regulations to prevent this. Industries are supposed to treat the waste produced before discharging it into the waters. But quite often the rules are not followed. अभी फैक्ट्री जब हम लगाते हैं तो गवर्नमेंट रूल्स बना के देती है कि देखो आप फैक्ट्री ये बना रहे हो, लेदर की फैक्ट्री है आपकी फैक्ट्री में से ये वेस्ट निकलेगा, तो आप उस वेस्ट को पहले ट्रीटमेंट करो, राइट, और बाकी का जो वेस्ट बचता है फिर वो ट्रीटमेंट करने के बाद वेस्ट को आप पानी में डिस्चार्ज कर सकते हो. लेकिन जो वेस्ट निकला है उसमें से कंपनी वो तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. तो अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके ऊपर खर्चा आएगा, राइट. तो कंपनियां अपना खर्चा बचाने के लिए पानी जो वेस्ट उनका निकलता है उसको ट्रीटमेंट करते नहीं हैं, बगैर ट्रीटमेंट किए ही पानी में जाने देते. क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट का खर्चा बच जाएगा, उनका पैसा बच जाएगा. लेकिन वो पैसा बचाने के चक्कर में वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं नदी का. उसका क्या, राइट. लेकिन रूल्स है, कोई फॉलो नहीं करता है रूल्स को. प्रॉब्लम यहाँ पर है. The soil is also affected by the impure water causing the changes in the acidity, growth of the worms and etc. अभी जहाँ पर नदी में गंदा पानी गया है तो नदी के आजू बाजू की ज़मीन जो है वो भी गंदी हो जाएगी, क्योंकि पानी का इफ़ेक्ट तो ज़मीन को भी करेगा. उसमें भी अलग अलग किस्म के कीटाणु लग जाएंगे ज़मीन में. You have learnt in chapter 1 the importance of pesticides and weedicides for the protection of crops. However, all these chemicals dissolve in water and are washed into the water bodies from the fields. They also seep into the ground to pollute the groundwater. अभी देखो हमने खेत लगा रखे हैं, तो खेत में जो पैदावार उगी है उसके ऊपर कीटाणु, वीड्स ना उग जाए और पेस्टिसाइड ना आ जाए, पेस्ट ना आ जाए, इसके लिए हम लोग उसके ऊपर दवा छिड़कते हैं. अब वो दवा तो छिड़क दी हमने पेस्ट से बचने के लिए, राइट. फिर जब पानी देंगे तो वो पानी में मिक्स हो जाएगी और वो ज़मीन में उतर जाएगी केमिकल्स, और फिर ज़मीन को ख़राब कर देगी. और या तो ज़मीन के अंदर का अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको भी वो पोल्यूट कर देते हैं. So have you seen the ponds which look green from a distance because they have a lot of algae growing in them? This is caused by the excessive quantities of chemicals which get washed from the fields. This act as nutrients for the algae to flourish. Once these algae die, they serve as food for the decomposers like bacteria. A lot of oxygen in the water body gets used up. This results in the decrease in the oxygen level which may kill the aquatic organisms. अभी देखो
दूर से कोई तालाब आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है तो उसका मतलब उसके ऊपर आल्गे आ गई है। अब आल्गे कहाँ से आएगी कि केमिकल जो हमने कचरा ने वो सब पानी में बहाया है ना वो आल्गे के लिए फूड बन जाएगा, तो आल्गे फैलती जाएगी, राइट। फिर आल्गे डेड भी हो जाएगी, है ना। तो जब आल्गे डेड हो जाएगी उसके लिए बहुत सारे डिकम्पोजर्स जो होते हैं आल्गे को डिकम्पोज करने वाले, राइट, तो वो सारा ऑक्सीजन ले लेंगे और पानी में फिर जितने ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो फिर कैसे रह पाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से पानी हमारा ख़राब हो रहा है। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू द रिवर्स। अभी देखो हम सबके घर में अंदर गटर होती है ना, गटर का पानी बहता है। अगर वो सबके गटर वाला पानी नदी में बहा दिया जाए तो पानी कितना गंदा हो जाएगा, सोचो आप। फिर फूड वेस्ट, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय द सीवेज। और कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट साबुन वाला पानी भी जाता है उसमें, है ना। तो ये सारा ग्राउंड वाटर को कैसे इफेक्ट करता है। वाटर कंटामिनेटेड विथ सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है गटर के पानी के अंदर वायरस भी होते हैं, फंगी होती हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं विच कोज द डिसीज लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड एंड जॉइंटिस। अगर ये गटर वाला पानी मिक्स हो के आ गया, राइट, तो हमको ये सारी बीमारियां लग सकती हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ द मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। इफ वाटर हैज दिस बैक्टीरिया इट मीन्स दैट it has been contaminated by fecal matter. If such water is used by us, it can cause various infections. तो मड़ मूत्र में जो कीटाणु होते हैं, राइट, अगर वो पानी में चले गए और वो पानी हमने यूज़ में लिया तो हमको वो बीमार तो कर ही देता है, बहुत बीमार कर देता है, राइट। What is पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्यूरिफाइड। पोर्टेबल मतलब पोर्ट में पानी हम भरते हैं, और वो पानी हम क्यों भरते हैं, पीने के लिए, रसोई में यूज़ में लेने के लिए, राइट। तो वो प्यूरिफाइड कैसे होता है पानी, राइट, लेट अस सी दैट। Bujo is very upset. He tells the Paheli that he drank the water which looked clear and was without any smell, but still he felt sick. बूजो जो है पहली को बोलता है कि मैंने मटके में से पानी पिया जो दिख तो साफ रहा था और उसमें से बदबू भी नहीं आ रही थी, तो मैंने पिया लेकिन फिर भी मैं बीमार पड़ गया। Paheli explains that water which looks clean may still have disease carrying microorganisms and dissolved impurities, so it is essential to purify the water before drinking it, for example by boiling. अभी देखो कोई भी पानी है वो दिखता क्लियर है हमको, राइट, उसमें से बदबू भी नहीं आती है, लेकिन उसके अंदर स्टिल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमको बीमार कर सकते हैं। तो कैसे बचा जाए बीमारी से, कि जो भी पानी हो भले ही साफ़ दिख रहा है, बदबू नहीं आ रही, लेकिन उसको पहले उबाल लो, गर्म कर लो पानी को, ताकि जो भी उसके अंदर कीटाणु होंगे वो सब डेड मर जाएंगे, राइट। फिर वो पानी पियोगे तो हमको नुकसान नहीं होगा। तो पीने से पहले पानी हमेशा उबाल लेना चाहिए। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो जो पानी पीने लायक होता है उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into water bodies. Similarly, municipal bodies treat the water before supplying it to the households. Let us see how water can be made for drinking. तो पीने के लिए पानी को साफ़ कैसे किया जाता है, let us see. You have already seen how water is filtered. This is a physical method of removing impurities.
अ पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर इज़ ए कैंडल टाइप फिल्टर। अभी हम सबके घर में देखो आरओ मशीन लगा हुआ है, नहीं तो वो वाइट कलर की बड़ी बॉटल आती है, उसका पानी हम लेते हैं। तो उसमें होता क्या है, एक बड़ी सी फिल्टर होती है जिसको हम कैंडल बोलते हैं। तो पहले तो उसको फिल्टर किया जाता है पानी को। मैनी हाउस होल्ड्स यूज बॉइलिंग एज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। पहले उस पानी को छान लो, फिल्टर कर लो, ताकि उसमें से बहुत सारे कचरे ने केमिकल्स निकल जाएंगे। फिर जो पानी बचा है, स्टिल अगर उसमें ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसको गर्म कर लो एकदम। तो गर्म करने के बाद भी वो कीटाणु निकल जाएंगे। Chlorination is a commonly used chemical method for purifying water. It is done by adding chlorine tablets or bleaching powder to the water. We must be cautious. We should not use more chlorine tablets than specified. तो पहले वाटर को हमने छान लिया, फिर गर्म कर लिया। स्टिल अभी भी डाउट है तो हम उसके अंदर क्लोरीन की टैबलेट्स डाल सकते हैं, है ना। तो पानी एकदम साफ़ हो जाएगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखनी कि ज़्यादा क्लोरीन ना हो जाए पानी, है ना, वरना वो भी हमको नुकसान पहुंचाएगा। सो व्हाट कैन बी डन, क्या किया जाता है। लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड so that polluted water is not disposed of directly into the rivers and lakes. तो कंपनियों के ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट लॉज लगा दिया जाए कि अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आपके फैक्ट्रीज बंद करवा दी जाएगी। तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसकी डर से वो लोग ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। तो स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए कि आप अपने वेस्ट को पहले ट्रीटमेंट करो, फिर उसको नदी नालों में बहाओगे, ठीक है, डायरेक्टली नहीं बहाओगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल द इंडस्ट्रियल एरियाज। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो होना ही चाहिए। एट आवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव द वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। बाकी हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उतना पानी को बचाना भी चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल शुड बी अवर मंत्र। रिड्यूस यानी कि कम यूज़ करो, रीयूज़ यानी कि वो पानी को बार बार यूज़ कर सकें ऐसा करो, एंड रिसाइकल, है ना, उसको ट्रीटमेंट करके उसको वापस यूज़ में आ सके ऐसा करना चाहिए। तो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। और हम क्या कर सकते हैं पानी बचाने के लिए, राइट। We can think of creative ideas like reusing the water used for washing and for other household tasks. For example, water used for washing vegetables may be used for water plants in the garden. अभी देखो सब्जी ले आए हम लोग बाहर से, तो सब्ज़ी तो डायरेक्टली नहीं बनेगी, उसको धोना पड़ेगा ना पानी से। तो सब्जियों को पानी से धो डाला, अब वो पानी गंदा हो गया। अब वो पानी जो है हम पीने में यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे घर में या बाजू में कहीं गार्डन है तो उस गार्डन को वो पानी देने में तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही पानी से दो काम हो गए, वाटर को, प्लांट्स को, गार्डनिंग को भी पानी दे दिया और हमारी सब्जियां भी धुल गई, राइट। Pollution is no longer a distant phenomenon, it is affecting the quality of our lives. Unless we all realize our responsibility and start using environment friendly process, the very survival of our planet is in danger. तो आज से, अभी से हम सब लोग अपने आजू बाजू की इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे ये प्रोटेक्शन लेयर जो है वो बढ़ती जाएगी और सारी की सारी पृथ्वी, या पहले तो देखो हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं, फिर हमारा मोहल्ला साफ़ सुथरा हो सकता है, फिर हमारा शहर हो सकता है, फिर हमारा गांव हो सकता है पूरा, फिर हमारा पूरा ज़िला हो सकता है, फिर स्टेट हो सकता है। इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे सफाई की तरफ, राइट, सेफ इन्वायरमेंट की तरफ। तो हमारी पृथ्वी को हम रहने लायक बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर्स तो पहले ही दे दिए हैं मैंने, ठीक है। कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।